Hello students, welcome to our online lecture. Now this is second lecture of chemical bonding. In last lecture, we have discussed about the types of chemical bonding. In that we have seen ionic bond, covalent bond, how to prepare covalent bond, how to form covalent bond. Then octet rule, how octet rule is important for the formation of bond, for the stability of, for gaining the stability of atom. Again, we have seen the Lewis structure of different molecules. So rules to draw the Lewis structures. Okay. Now, in this lecture, we will discuss about the VSEPR theory, that is called as the valence shell electron pair repulsion theory, and valence bond theory. These two theories are very important. Okay. So now, let us start the VSEPR theory. Valence shell VSEPR, the long form of VSEPR. Long form क्या है? It is valence shell electron pair repulsion theory. V stands for valence, S stands for shell, E stands for electron, P stands for pair, and R stands for repulsion. So this theory is totally based on electron pair, and electron pair are of two types. One is electron pairs दो form में रहते. One is in the form of bond pair and another one is in the form of lone pair. Now what is the difference in between bond pair and lone pair? Bond pair is nothing but a electrons involved in the bond. वन सिंगल बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है, इट कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दिस थ्योरी इज रिलेटेड विद द कोवैलेंट बॉन्ड, नॉट आयोनिक बॉन्ड. मीन्स इसके आगे हम लोग जो भी थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं, लाइक VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आर ऑल रिलेटेड विद द कोवैलेंट बॉन्ड. Covalent bonds are formed by the sharing of two electrons. That means one bond formed by sharing of two electrons. So one bond contains two electrons, right? So electron pair bond pair के फॉर्म में हो सकते हैं या लोन पेयर के फॉर्म में. लोन पेयर मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोग कोई भी एटम के ऊपर ऐसे दो डॉट में दिखाते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखाते हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर दिखाते हैं, लाइक दैट. ओके. सो this theory was suggested by a scientist Sidgwick and Powell in the year 1940. Again, after that, it was again developed by Gillips and Nilovam in the year 1957. This theory tells about the properties of substances which are depend on the shape of molecules. Listen, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी VSEPR थ्योरी, ये स्टडी, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज लेविस स्ट्रक्चर और लेविस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, राइट, bond angle of molecule, hybridization state of molecule. So these limitations are overcome by this theory, valence bond theory and VSEPR theory. So in this theory, we will explain the shape of molecule, the geometry of molecule, which are based on that in a polyatomic molecule, the direction bonds around the central atom depends on the total number of bonding and non-bonding electron pair in its valence shell. As I told you earlier, Lewis concept or Lewis theory is unable to explain the shape of molecules. Listen, shape of molecules, all molecules, there are number of molecules in chemistry. The shape of all molecules cannot be described by any single theory. ओके. सो इसीलिए ये थ्योरी के बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं. सो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स सभी थ्योरीज की होती है जो ओवरकम किए जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी से. ओके. सो ये जो थ्योरी है, इन दैट
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपने मॉलिक्यूल में होंगे या जो अपने एटम्स में होंगे, उनकी अरेंजमेंट, उनके बॉन्ड के डायरेक्शन जो रहेगी, on the basis of that we have to decide the geometry and shape of molecule. So there are some rules of VSEPR theory. अब रूल्स कौन से होते हैं? How to draw the structure, how to draw the shape of molecules. So one thing remember, this theory is totally based on electron pair and this theory is totally based on electron pair. Electron pair मतलब कौन से? Bonding and non bonding. Bonding मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, एंड नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर. उसको लोन पेयर भी बोला जाता है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोला जाता है. ओके, so the first rule is the shape of molecule is determined by the repulsion between all of electron present in the valence shell. इसका मीनिंग क्या होता है? See, the shape of molecule is determined by the repulsion between all of electron present in the valence shell. Means जब भी हम लोग शेप ड्रॉ करेंगे अपने मॉलिक्यूल का, वो ऐसा होना चाहिए कि रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन के बीच का, on the basis of that शेप डिसाइड होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिपल्शन उतना डिस्टॉर्टेड अपना शेप रहेगा. Electron pair in the valence shell of central atom repel each other and align themselves to the minimize this repulsion. That means electron pairs arrange themselves in such a way that repulsion between them is minimum. राइट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद को ऐसे जगह पे रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, नॉट मैक्सिमम. मतलब वो खुद को ऐसे अरेंज कर देते हैं कि जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके बीच में रिपल्शन तो होगा ही, राइट. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन द बॉन्ड पेयर. यस, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं बॉन्डिंग में, बट द लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते. इट रिमेन एज इट इज. सो वो ज्यादा स्पेस लेते हैं, राइट, देन द बॉन्ड पेयर. लोन पेयर अट्रैक्टेड टू वन न्यूक्लियस बट द बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियर. यस, लोन पेयर एक एटम पे होती है और बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में बॉन्डिंग का रहता है, राइट. ये तो सबको पता है कि बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना, और बॉन्ड किसके बीच में होता है? टू एटम्स के बीच में होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो जो बॉन्ड पेयर से वो दो एटम के न्यूक्लियाई के साथ अटैच होंगे, मतलब न्यूक्लियाई के शेयर होंगे, राइट. और लोन पेयर तो एक सिंगल एटम की होगी. सो लोन पेयर क्या है? अट्रैक्टेड टू वन न्यूक्लियस बट द बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई. द मिनिमम रिपल्शन to the state, minimum energy and maximum stability of the molecule. Minimum repulsion, listen, जितना कम रिपल्शन होगा उतनी कम एनर्जी रहेगी and the molecule become more and more stable. Listen carefully, जो भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम रहती है वो मोर स्टेबल रहता है, और जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा रहती है वो लेस स्टेबल रहता है. ओके, मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बहुत सारा खाना खा लो तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब उसको अनइजीनेस रहेगा, और अगर कम खाना खा लो या मिनिमम मतलब जितना लगता है उतना खाना खा लो तो वो स्टेबल रहेगा, लाइक दैट. अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ये करूँ वो करूँ क्या करूँ ऐसा लगेगा, बट जब मिनिमम एनर्जी रहेगी तो इट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल. ओके, सो द रिपल्शन स्ट्रेंथ क्या होती है? सो अब तक हम लोगों ने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इज लोन पेयर, अनदर वन इज बॉन्ड पेयर. तो ये लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, क्योंकि दो एटम के अगर लोन पेयर है या एक एटम के दो लोन पेयर है, लाइक ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर रहती है, राइट. तो वो दो लोन पेयर भी बीच में भी रिपल्शन होगा ना, बिकॉज ऑल आर द इलेक्ट्रॉन्स ना, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, तो उनके नेगेटिव के बीच में तो रिपल्शन होना ही है. सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन रहता है लोन पेयर रिपल्शन, which is greater than lone pair bond pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion. So ये तीन ध्यान में रखना. Strength of repulsion, lone pair repulsion is always greater than the lone pair bond pair repulsion.
लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है कि टू बॉन्ड पेयर्स के बीच का रिपल्शन. ओके. इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड क्या रिपल्शन रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा रहता है देन डबल बॉन्ड विच इज ग्रेटर देन द सिंगल बॉन्ड. नाउ because of presence of lone pair, listen carefully, because of presence of lone pair on the central atom, it causes a slight distortion of the bond angle from the ideal shape. मतलब जो अपना आइडियल शेप होगा, अगर वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है अपने सेंट्रल एटम पे, तो वहां पे रिपल्शन होगा. रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, राइट. सो वो जो रिपल्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, सो बॉन्ड एंगल जो रहेगा अपना, जो आइडियल बॉन्ड एंगल रहेगा वो हो गया जब कम. दैट इज कॉल्ड ए स्लाइट डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द आइडियल शेप. The magnitude of repulsion between bonding pair of electrons depend on the electronegative difference between the central atom and the other atom. Yes, electronegativity difference तो सबसे important होता है और उस पे बेस्ड भी होता है रिपल्शन की स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, सेंट्रल एटम और अदर एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. नाउ हाउ टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. अब अपने को अगर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देखना है तो वो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो फर्स्टली डिटरमाइन द सेंट्रल एटम. कौन सा सेंट्रल एटम होगा? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड बार डायग्राम. नेक्स्ट इज फाइंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, देन फाइंड अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग पेयर, एंड लास्टली डिटरमाइन द ज्योमेट्री बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग पेयर. नाउ सी, ये जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है. यू आर टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, देन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, फिर फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड लास्टली आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री बेस्ड ऑन बॉन्डिंग पेयर. ओके. शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. मीन्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डेड पेयर से, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का हम लोग अभी शेप डिस्कस करने वाले हैं. सो सेंट्रल एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. सेंट्रल एटम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा. बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू टेल यू कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, whenever only bonded pair of electrons are present in a molecule, मतलब सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर कोई भी लोन पेयर अपने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये BeH2, ठीक है, BeH2, in case of beryllium, is it any lone pair on beryllium? No, there is no any lone pair. मतलब यहाँ पे जो भी दिखा है वो all are bond pairs. कितने bond pairs है? ये 2 bonding bond है. So that means 4 bond electrons होंगे. Pairs कितने हुए? 2 bond pairs, right? एक ये यहाँ पे 2 electrons और एक यहाँ के 2 electrons, मतलब पेयर कितने हुई? 2 ही हुई ना. So 2 bond pair electrons, only bond pairs, there is no lone pair. So ऐसी अगर केस है जहाँ पे लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, and all are the bond pairs, then geometry of molecule is equal to the shape of molecule. Remember that this is very important term. कि अगर बॉन्ड पेयर नहीं, सॉरी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, कोई भी मॉलिक्यूल रहा, कितने भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहे, only bonding electrons are there, only bond pair electrons are there, then the geometry and shape of molecule is same. But अगर वहां पे एक भी लोन पेयर है तो वहां पे आ जाएगा रिपल्शन. लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. सो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, राइट. सो वो केस में ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगा. ठीक है,
ये कौन सी केस में होता है? ज्योमेट्री और शेप व्हेनेवर लोन पेयर इज 0। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि व्हेनेवर लोन पेयर इज, एलपी को शॉर्ट फॉर्म कर ले लोन पेयर को 0, वो केस में ये होगा शेप एंड ज्योमेट्री सेम। बट व्हेनेवर लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0, लोन पेयर अगर 0 नहीं है, 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो ये ज्योमेट्री भी इज नॉट इक्वल टू शेप, फिर वो चेंज हो जाएगा शेप। वो आपको अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये टर्म आपको ध्यान में रहेगी आगे तक। ओके, whenever the lone pair is 0, then geometry and shape are same. But whenever the lone pair is not equal to 0, then geometry and shape are not same. Understood? So let us discuss about the BeH2 molecule. In that there are 2 electron pairs in the valence shell of beryllium. Yes, 1s2 2s2. उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2s2। ये 2s के बाद 2p भी आता है ना, Empty2pa, सो ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में सिंगल सिंगल, सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड दीज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विद द these 2 hydrogen atoms, formation of this BeH2 molecule. So here इसको अरेंज करके देखो, BeH2 ये पूरा लीनियर है, एकदम स्ट्रेट है, so their geometry is linear and shape is also linear, and the bond angle in between these 2 bonds is 180. बॉन्ड एंगल मतलब क्या होता है कि 2 बॉन्ड का एंगल, तो दिस इज 180. ओके, नाउ द सेंट्रल एटम विथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो अपना ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सो टेक एग्जांपल ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3. अब इन केस ऑफ बोरॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1, राइट? अब ये 1s2 तो हम लोग वैलेंस शेल कंसिडर नहीं करते, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से रहते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे। ठीक है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, कितने इलेक्ट्रॉन से? 2s2 2 और ये 3, ये एक्सेप्ट p का एम्प्टी रहेगा, ये 2 एक्साइटेड स्टेट में चला जाके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एंड दिस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ओवरलैप विद द फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन एटम उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अब वो आगे आ रहे ओवरलैप एंड वी गेट दिस BF3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे लोन पेयर है क्या? नहीं है, दैट मीन्स ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि सबका बीच का रिपल्शन अलग दूर दूर हो जाए, तो यहाँ पे सब बॉन्ड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसको ऐसे अरेंज किया गया है कि ऐसे दिखता है अपने को ट्राइगोनल प्लेनर के जैसे, राइट? ऐसा दिख रहा है ना ट्राइगोनल प्लेनर, एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस FBF is 120. बॉन्ड एंगल क्या है? 120 whenever the central atom of with 3 electron pairs. ये ध्यान में रखना कितने इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए काम में आता है ये। नाउ सेंट्रल एटम विथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मीथेन का। कार्बन 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन here 4 unpaired electrons are present, then it is overlap with the 4 hydrogen atom and we get is CH4. अब ये CH4 को ऐसे अरेंज किया, there is no lone pair on the central atom, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम। सो इसको ऐसे अरेंज किया जाता है कि इसकी ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल, लाइक दैट, टेट्राहेड्रल, एंड द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन HCH is 109 degree 109.5 degree. Okay, tetrahedral shape and geometry. सेंट्रल एटम विद द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग PCl5। PCl5 का फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब वैलेंस शेल कौन से? ये वाले हैं, राइट, ये वाले 3s2 3p3, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से। सो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिड इज, इसको ऐसे अरेंज करो, Cl अटैच हो गए 5, इसको ऐसा कैसे दिख सकता है? दिख रहा है आप लोगों को,
ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ ऑलरेडी किया हुआ है, देखो ये ट्राइगोनल है, राइट, ये वाला ट्राइगोनल है और उसके ऊपर नीचे पिरामिड लग रहा है, बाय पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाय पिरामिड एंड द बॉन्ड एंगल इज हियर, टू बॉन्ड एंगल्स आर देयर, सबके अलग अलग है ना बॉन्डिंग, सो यहाँ से यहाँ तक का रहेगा 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का है 120 डिग्री and the shape and geometry of molecule is trigonal by pyramid. If central atom contains 6 electron pairs, so in that case example is SF6, सल्फर का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं एज अ सेंट्रल एटम, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, सो 1s2 2s2 ये हो गए 10 और ये 2 3s2 3p4, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये 6, so in that since 6 unpaired electrons of sulfur overlap with the 6 electrons of fluid 6 fluorine atoms and we get this SF6. Again in that case sulfur पे कोई lone pair नहीं है, that means geometry and shape होता है same, जिसको ऐसे अरेंज किया जाता है octahedrally like that, इसे अरेंजमेंट रहती है octahedral structure और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं octahedral and the bond angle is 90 degree. So here also geometry and shape both are same because there is no lone pair. Okay. So यहाँ पे चार्ट है, see this chart, number of electron pairs अभी जो हम लोगों ने देखे उसी का इसको चार्ट दिया हुआ है. So number of electron pairs, then arrangement of electron pair, then molecular geometry and examples. So इसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम्पल्स को साथ with their geometry. So see here, firstly number of electron pair अगर 2 रहे तो arrangement of electron pairs क्या रहती है, linear, right? So linear geometry रहेगी, example is Br2 CO2. If number of electron pair 3 ने तो trigonal planar, example is Bf3 BCl3 BH3. 4 electron pair है तो the geometry is tetrahedral like methane, NH4 positive SiCl4. If 5 electron pair है then their geometry is trigonal bipyramidal. इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल का, एंड एग्जांपल्स आर PCl5 SbF5 A5 F5. एंड लास्टली इफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है then the structure is octahedral arrangement, geometry is octahedral and examples are SF6, TeF6 and SeF6. नाउ अब तक हम लोगों ने देखा ऐसे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है. नाउ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, मींस इसके आगे के जो हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं, इन दैट बोथ पेयर्स आर प्रेजेंट, बॉन्डेड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स. सो फर्स्टली central atom with 4 electron pair, central atom with 4 electron pair. Consider the example NH3. 5 electrons in the valence shell. नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले. अब 5 में ये 2 पेयर्ड है और ये 3 अनपेयर्ड है, और 2D तो आता ही नहीं है, मतलब ये जो पेयर्ड वाला है दिस इज कंसिडर्ड एज अ लोन पेयर, और ये 3 जाएंगे अनपेयर्ड बॉन्डिंग में, बॉन्ड पेयर में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन, ये आगे इसके हेड पे एक लोन पेयर, ये वाली 2s2 लोन पेयर, और ये 3 बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएंगे. सो वी गेट दिस NH3 स्ट्रक्चर. अब दिखता कैसे है, दिखता है ये टेट्राहेड्रल, बट ये लोन पेयर आ गई ना. अब ये लोन पेयर और यहाँ पे रिपल्शन आएगा, फिर ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में आएगा रिपल्शन, राइट. ये लोन पेयर जैसे आती है, बॉन्ड पेयर थोड़े अलग हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे लोन पेयर से. सो इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी दैट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, एंड शेप कैसे दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ ये ट्राइगोनल, ये अपना ट्राइगोनल शेप, that is called as trigonal pyramidal shape. Electronic pair arrangement, geometry is distorted tetrahedral and the shape is trigonal pyramidal.
one electron is there. So in this case, there is a repulsion of lone pair and bond pair electrons. यहाँ पे एक ही lone pair है, तो lone pair नहीं होगा. Lone pair and bond pair repulsion occur. In case of central atom with 4 electron pair, फिर से 4 electron pair है. Example is H2O. H2O के केस में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 6. सो हियर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी 8 एटॉमिक नंबर है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ये एक पेयर्ड है और दूसरा पेयर्ड रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे. तो जो पेयर्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर रहेंगे और जो 2 अनपेयर्ड रहेंगे वो ओवरलैप होंगे अपने हाइड्रोजन के साथ. वी गेट दिस स्ट्रक्चर. ये वाला स्ट्रक्चर अपने को मिल रहा है H2O का और ये 2 लोन पेयर है. लोन पेयर है, देखो ऐसे अरेंज हुई है वो. तो इनके बीच में कौन सा रिपल्शन होगा? पहले तो लोन पेयर हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर. यहाँ पे तीनों रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड लास्टली बॉन्ड पेयर रिपल्शन. सो बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर ये बॉन्ड हाइड्रोजन बहुत क्लोज आ गए एक दूसरे से. सो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट और यहाँ पे है 104 डिग्री 27. तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इज अ ज्योमेट्री एंड सॉरी जस्ट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज वी शेप. ये वी शेप जैसे दिख रहा है ना, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेंट शेप. देन सेंट्रल एटम विद द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर. अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है हम लोगों ने SF4 का. सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. सो ये तो हो जाएगी लोन पेयर और ये 3p4 का एक एक्साइटेड स्टेट में जाके 3d में 5. सो 4. ओके. नाउ हियर अब इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर रहे हैं, सल्फर पे एक लोन पेयर दिखा रहे हैं और एक फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन अटैच है. अब ये आगे अपनी लोन पेयर, ठीक है. तो लोन पेयर है और ये 4 अपने बॉन्ड पेयर्स. तो ये 4 बॉन्ड पेयर्स ऐसे अरेंज होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अपने को दिखता है सीसॉ के जैसा. मतलब इसकी ज्योमेट्री हो जाती है सीसॉ. आप लोगों ने गार्डन में खेले होंगे ना सीसॉ पे, ठीक है. तो ये 2 स्टैंड और 2 ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सीसॉ. तो ऐसी इसकी ज्योमेट्री दिखती है. एंड इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट कैसे है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. बट दिस इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ये चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है. एंड बॉन्ड एंगल इज सेम 120 एंड 90 डिग्री. And if 6 electron pairs are there, example is xenon fluoride, tetrafluoride. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है अपने xenon के पास. ये आगे इधर, तो इसमें से कितने 2 लोन पेयर है और बाकी के 4 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होंगे. तो इसको ऐसे अरेंज करना है लोन पेयर को और बॉन्डिंग पेयर को कि उनकी ज्योमेट्री लेस मिनिमम रिपल्शन में रहे. तो ये 2 लोन पेयर्स ऊपर और नीचे शो की गई है यहाँ पे, और ये 4 बॉन्ड पेयर्स. तो ये ऐसे स्क्वायर के जैसे दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द स्क्वायर प्लेनर. ओके. सो हियर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दोनों रहेगा. Now see the table. Geometry of some molecules having one or more lone pair of electrons. अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर टाइप दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का टाइप AB2E. अब A किसको बोला है, B किसको बोला है और E किसको बोला है? C. A stands for the central atom, ठीक है. B stands for bonding
बॉन्डेड एटम मतलब कितने बॉन्डेड एटम है, एंड इट स्टैंड्स फॉर लोन पेयर। अब यहाँ पे AB2E है, मतलब A इज द सेंट्रल एटम, बॉन्डेड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए पेयर्स, 3 हो गए। तो तीन में एक लोन पेयर है और 2 बॉन्डिंग पेयर है। तो 2 लोन पेयर मतलब हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल क्या आया था, ये 2 लोन सॉरी बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे अरेंज की गई है, ये बॉन्ड पेयर रहेगी और एक लोन पेयर रहेगी ऐसे ऊपर। सो ये शेप क्या हुआ, वी शेप या बेंड शेप। ठीक है। देन AB3E, AB3E के केस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है, टोटल कितने हुए 4। अब ये 4 को ऐसे अरेंज करो, फिर से ये लोन पेयर आ जाएगी और ये 3 बॉन्ड पेयर्स, तो ये कैसे दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल NH3। देन AB2E2, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हम लोगों ने देखा अभी वाटर में, these are the 2 lone pairs and these 2 are the water hydrogen bond pairs. So band structure है, like examples are H2, OF2, H2S, HCl2 etc. Next is AB4E. Here bond पेयर 4 है और लोन पेयर 1 ही है, टोटल हो गए 5। 5 के केस में हम लोगों ने क्या ऐसा अरेंज किया था, ये आ गए लोन पेयर और ये अपना सीसॉ, ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं और ये है इसका स्टैंड। सीसॉ अपनी ज्योमेट्री रहेगी एंड एग्जांपल इज SF4। इन केस ऑफ AB3E2 हियर बॉन्ड पेयर्स 3 है, लोन पेयर 2 है, टोटल हो गए 5। अब लोन पेयर 2 है तो ऐसे इसकी लोन पेयर होगी, सो ज्योमेट्री बिकम टी शेप। ये टी शेप के दिख रहा है ना, टी जैसे दिख रहा है ना ये। सो एग्जांपल इज ClF3, BrF3, ICl3 etc. AB5E, in that 5 bond pairs and 1 lone pairs, मतलब 5 आइटम इसको अटैच होंगे। तो ये 5 आइटम इसको अटैच है और यहाँ होगी इसकी लोन पेयर। सो ये कैसे दिख रहा है, ये स्क्वायर है और ये पिरामिड है। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिड। एग्जांपल इज BrF5, IF5। एंड लास्ट इज AB4E2, in that 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर हो गए 6। और 6 के केस में अगर 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर और ये हो गए अपने स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल इज xenon टेट्राफ्लोराइड, अभी हम लोगों ने देखा इसको। सो these are the some examples of molecules containing bond pairs as well as lone pairs. Okay, I hope students आपको समझ में आया होगा। Now our next theory is valence bond theory. Now this valence bond theory was proposed by A. Hitler and London to explain the formation of covalent bond quantitatively using quantum mechanics. Later on, Linus Pauling improved this theory by introducing the concept of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट आ गई। ओके, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी assume that all bonds are localized bonds formed between 2 atoms by the donation of electron from each atom. Valence bond theory described the covalent bond formation as well as electronic structure of molecule. As we discussed earlier, valence bond theory is again related with the covalent bond. Okay, so the theory assumes that electron occupy atomic orbitals of individual atom within the molecule and that the electron of one atom are attracted to the nucleus of another atom. इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है, और फिर एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस के साथ दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं। A covalent bond is formed by the overlapping of 2 half-filled valence atomic orbital of 2 different atoms.
जैसे कि हम लोगों ने बोला था कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने वहां इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में है, ठीक है। तो दो हाफ फिल्ड होने चाहिए, नॉट फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैसे कैपेसिटी 2 की रहती है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब वो जो स्क्वायर दिखाते हैं ना हम लोग, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। सो हाफ फिल्ड मतलब एक एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल में टू डिफरेंट एटम्स के, तो ही वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। The electrons in the overlapping orbitals get paired and conform between the nuclei of two atoms. वो पेयर ओवरलैप होके ऑर्बिटल्स में पेयर तैयार करते हैं एंड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द टू एटम्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग. दिस कंफर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी एंड वी गेट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म. ये लिखा है यहाँ पे ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म. द डायरेक्शन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल. ओके, सो यहाँ पे देखो कौन से टाइप्स के बॉन्ड रहते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग. जैसे अभी हम लोगों ने बोला ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज पाई बॉन्ड. Sigma bonds are formed by the linear overlapping of two orbitals. Linear मतलब जैसे एक्सिस है, तो एक्सिस के पैरेलल में वो लीनियरली यहाँ पे ओवरलैप हो रहे. दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में कि ये लीनियरली, दिस इज एक्सिस, और ये एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप हो रहे. जैसे ओवरलैप होते तो उनकी एक लोब छोटी हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड. और पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप होते. लैटरल मतलब ये जो एक्सिस रहेगी इसके परपेंडिकुलर ऐसे ओवरलैप होंगे, ये ऐसे ओवरलैप होंगे, या जैसे यहाँ दिखा है ये पैरेलल एक्सिस को पैरेलल ओनली ओवरलैप हो रहे. ठीक है, तो पैरेलल हो गया, पैरेलल ओवरलैप होता है तो अपने को पाई बॉन्ड मिलेगा, और लीनियर ओवरलैपिंग होता है तो अपने को सिग्मा बॉन्ड मिलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सिग्मा बॉन्ड, the covalent bond formed due to overlapping of atomic orbital along the internuclear axis is called a sigma bond. It is stronger bond and cylindrically symmetrical. Sigma bond is more stronger than the pi bond. Depending on the type of orbitals overlapping, sigma bond is divided into following types. अब यहाँ पे अपने को पता है कि जो जो ऑर्बिटल्स अपने एटम में प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से अपनी ओवरलैपिंग होगी. तो सिग्मा बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, एक एसएस बॉन्ड, सिग्मा एसएस बॉन्ड, सिग्मा पीपी बॉन्ड एंड सिग्मा एसपी बॉन्ड. तो जैसे जैसे ओवरलैपिंग होगा वैसे वैसे उसका टाइप डिसाइड होगा. नाउ सी, if s orbital of one atom overlap with the s orbital of another atom, जैसे हाइड्रोजन का है, ठीक है. हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, तो वो s ऑर्बिटल हुआ ना. तो s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ओवरलैप विद द s ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, तो दोनों ss ऑर्बिटल हो गए, तो वो लीनियरली ओवरलैप हो रहे, तो वी गेट अ सिग्मा. एंड ss ऑर्बिटल है इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे सिग्मा ss बॉन्ड. तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है डायग्राम, ये s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, दोनों का अपोजिट स्पिन होना चाहिए. अगर एक ऑर्बिटल का स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे ऑर्बिटल का स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. अपोजिट स्पिन में ही वो ओवरलैप हो सकते, एंड वी गेट दिस सिग्मा ss बॉन्ड. मतलब कुछ भी नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना. जब यहाँ पे हम लोग शेयरिंग बोल रहे थे, यहाँ पे भी शेयरिंग ही हो रही है, बट ओनली ऑर्बिटल्स के फॉर्म में ओवरलैपिंग हो रही है. बॉन्डिंग वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स भी वही रहेंगे. नेक्स्ट, सिग्मा पीपी, मतलब whenever the p orbital of one atom overlap with the p orbital of another atom. अब p ऑर्बिटल का शेप रहता है डम्बल शेप, तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे लीनियरली, मतलब एक्सिस के ये एक्सिस के साथ ओवरलैप हो रहे ऐसे एक्सिस के साथ, तो वी गेट सिग्मा पीपी बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए विथ अपोजिट स्पिन. एंड सिग्मा एसपी, सिग्मा एसपी कैसे तैयार होगा,
अब आप लोग भी बताओ मुझे, s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। जैसे हाइड्रोजन और Cl की बात करें तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल रहेगा और Cl का p ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि उसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे विद द अपोजिट स्पिन, देन वी गेट सिग्मा sp बॉन्ड। अंडरस्टूड? नाउ द पाई बॉन्ड। The covalent bond formed by the sidewise overlapping of atomic orbital is called as pi bond। जैसे कि हम लोगों ने देखा साइडवाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, तो हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ से जाती है ना, और ये अपने ओवरलैप हो रहे हैं ऐसे साइडवाइज साइड से हो रहे हैं, तो जो तैयार करते हैं पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड देन द सिग्मा बॉन्ड्स। In this bond, the electron density is present above and below the internuclear axis। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब above and below the internuclear axis। This is internuclear axis। It is relatively a weaker bond since the electrons are not strongly attracted by the nuclei of the bonding atom। Okay। Now formation of H2 molecule। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, according to electronic configuration of hydrogen 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, that means 1s orbital of one atom overlap with the 1s orbital of another hydrogen atom, we get this sigma bond। अब 1s 1s से मतलब ss ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे, तो ये कौन सा टाइप हुआ, सिग्मा ss। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा ss बॉन्ड। Cl2 molecule, ऐसे कैसे फॉर्म होगा Cl2 molecule? Electronic configuration of Cl is valence shell electronic configuration is 3s2, 3px2, 3py2 and 3pz1। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अनपेड रहेगा वही ओवरलैप होगा ना, तो ये 3pz1 ओवरलैप विद द अनदर 3pz1 ऑफ अनदर Cl एटम। तो एक Cl का ये इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl का ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे। कैसे ओवरलैप हो रहे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैप हो रहे, so we get sigma bond with pp overlapping। HCl का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, HCl का हाइड्रोजन एटम ओवरलैप विद द Cl। Cl का कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब 3pz1, तो ये p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, बट ओवरलैपिंग कौन सा रहेगा, sp ओवरलैपिंग। नाउ ये जो sp ओवरलैपिंग, ss ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी से होते हैं, राइट। बट अगर मॉलिक्यूल को अपने को तैयार करना है तो वो एक बॉन्ड ss ओवरलैप से हो रहा है, एक बॉन्ड sp ओवरलैप से हो रहा है, एक बॉन्ड pp ओवरलैप से हो रहा है, तो सभी ओवरलैपिंग की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी पूरी डिफरेंट हो जाएगी ना। सो टू अवॉइड दैट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये कंसेप्ट आया है। So what is hybridization? So what is the meaning of hybridization? Hybridization, that is simple, mixing and recasting। मतलब पहले मिक्स करो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, फिर उसका नया रूप बाहर आएगा, और जो नया रूप आया हुआ है उसको अच्छे से रिकास्ट करो, यानी ऐसे रिकास्ट करो कि जैसे उसकी सबकी एनर्जी सेम हो जाए। ओके, सो the intermixing of two or more pure atomic orbitals of an atom with almost same energy to give same number of identical and degenerate new type of orbitals is known as hybridization। Okay, the intermixing of two or more pure atomic orbitals of an atom with almost same energy to give same number of identical and degenerate new type of orbitals is known as hybridization। Now ये जो new orbitals तैयार हो रहे उसको क्या बोलते हैं, the new orbitals formed are also known as hybrid orbitals, उनको hybrid orbitals बोलते हैं। During hybridization, the atomic orbitals with different characteristics are mixed with each other। So there are number of types of hybridization, but in your syllabus there are only 3 types of hybridization, so मैंने भी उतने लिए। So types of hybridization, one is sp, sp2 and sp3।
ये 3 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सी, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स. ठीक है, हम लोग ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कर रहे हैं ना, तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ almost same or equal energy which are intermixed to give 4 identical and degenerate hybrid orbitals. देखो यहाँ पे एक 1s है और बाकी 3p. ये 3p px py pz होंगे, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, तो जितने जा रहे हैं उतने ही बाहर आएंगे ना, राइट? जितने अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर आएंगे. सो 4 अंदर जा रहे, एक s का जा रहा है, 3 p के जा रहे, तो वी गेट अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3. तो वो कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे. 4 आइडेंटिकल डिजेनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे जिनकी एनर्जी सेम रहेगी. So these 4 sp3 hybrid orbitals are oriented in a tetrahedral symmetry with 109 degree 28 angle with each other. The sp3 hybrid orbitals have 25% s character and 75% p character. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. Now take one example, sp3 hybridization of methane molecule. अब ये मीथेन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है? सी, अगेन सबसे पहले तो हम लोग मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करेंगे किसका? 1s and 3p orbital of same atom with nearly equal energy to form 4 sp3 hybridized orbital having the equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in a space. Why the need of hybridization? The observed valency of carbon in methane is 4 and it has a bond angle of 109 degree 28 with tetrahedron geometry which can be explained on the basis of hybridization. Now see, this is the electronic configuration of carbon 1s2 2s2 2p2. देखो इसको कैसे अरेंज किया है, 1s2 2s2 and 2p2. This is ground state electronic configuration. अब 2s और 2p की एनर्जी सेम ही रहती है, तो ये जो 2s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2pz का एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें ये ट्रांसफर हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ पे नीचे के स्ट्रक्चर में. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s1, ये 1 चाहिए यहाँ पे, 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. ये यहाँ लिखा है 2s1 2px1 2py1 2pz1. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से. तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन का एक 2s and 3 2p orbitals are intermixing together and form 4 sp3 hybridized orbitals. ठीक है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देखो formation of 4 sp3 hybridized orbital takes place. Now these 4 sp3 hybridized orbital अब किसके साथ ओवरलैप होंगे? 4 हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन का कौन सा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 ना, तो उसका तो ऐसी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा. तो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे लाइक दैट. ये देखो यहाँ पे ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये वाले, और ये स्क्वायर स्फेरिकल में जो दिख रहा है वो है अपना हाइड्रोजन. इट कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म sp3 and 1s overlapping से ये molecule that is called as methane molecule having a geometry tetrahedral. tetrahedrally arrange है ना, ये एक ऊपर और 3 ऐसा नीचे, तो वो tetrahedral geometry शो कर रहा है. अब यहाँ पे सभी बॉन्ड की एनर्जी सेम है, क्योंकि सभी बॉन्ड कौन से ओवरलैप से तैयार हुआ है? कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का s, तो ओवरलैपिंग क्या होता होगा यहाँ पे? sp3s sp3s. so all 4 bonds are made by sp3s overlapping. so सबकी एनर्जी सेम है, so molecule become more and more stable. bond angle is 109 degree 28. geometry is tetrahedral. ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. summary, sp3 hybridization occur when a carbon has, अब मीथेन के हाइब्रिडेशन कैसे तैयार हुआ है? sp3 hybridization occur when a carbon has 4 attached groups.
sp3 hybridized orbital has 25% s character and 75% p character. अब इसको कैसे निकाला? अब यहाँ पे sp3 है, मतलब टोटल काउंट करते हो पावर की तो कितना हुआ? s का पावर 1 कंसिडर करो, p के 3 है, टोटल कितने हुए? 4। अपने को परसेंटेज अगर निकालना है तो हम लोग डिवाइड बाय किसको करते हैं? जो टोटल है, तो टोटल कितना है? 4। s कैरेक्टर कितना है? 1। ठीक है, s का एक ही ऑर्बिटल है ना, और परसेंट निकालना है मतलब इंटू 100, राइट? तो 4 से डिवाइड करो, क्या होगा ये? 4 2 जा 8, बचे कितने? 2 और 0, तो 4 5 जा 20, कितना आया? 25%। सो एस कैरेक्टर इज 25% और रिमेनिंग 75% इज द पी कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इस पे कोई भी हाइब्रिडेशन दिया रहेगा और कैलकुलेट एस एंड पी कैरेक्टर। The 4 sp3 hybrids point towards the corner of a tetrahedron at 109 degree 28 or 109.28 degree to each other. Each sp3 hybrid orbital is involved in the sigma bond formation. All are the sigma bonds because all axially overlapping. sp2 hybridization. अब sp2 में क्या होंगे? एक s होगा और 2 p orbitals होंगे. So intermixing of 1s and 2p orbitals of almost equal energy to give 3 identical and degenerate orbitals. जितने अंदर जा उतने ही बाहर आएंगे. Known as sp2 hybridization. The 3 sp2 hybrid orbitals are oriented in a trigonal planar symmetry at angle 120 to each other. The sp2 hybrid orbitals have 33.3% s character and 66.6% p character. अब कैरेक्टर्स कैसे निकालना है आपको समझ में आ ही गया होगा. नाउ एग्जांपल इज BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. सो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का देखते हैं. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1. ये 1s और 2s तो अलग है, ये 2s2 और ये 2p 2pz 2py बोथ आर एम्प्टी. तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इट बिकम 300 इलेक्ट्रॉन्स. आ गए ये 300 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये तीनों इंटरमिक्स होंगे. कौन कौन है? 1 2s एंड 2 2p. सो आर इंटरमिक्सिंग टुगेदर एंड वी गेट कितने जा रहे? 3 जा रहे. सो sp2 3 degenerate sp2 hybridized orbitals are obtained. अब 3 sp2 hybridized ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप होंगे? फ्लोरीन के pz, फ्लोरीन के pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे. Each half-filled sp2 hybrid orbital of boron atom overlap axially with the 2pz orbital of fluorine atom containing electron with the opposite spin. Thus, the BF3 molecule is formed. Each BF bond is formed by sp2p overlap. Hence, it is a strong sigma bond. Okay. So this is FBF bond angle is 120 degree and geometry is trigonal planar. अब geometry trigonal और planar कैसे है? देखो, ये बोरॉन है और ये बोरॉन के 3 जो ग्रीन कलर में दिख रहे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इधर से डम्बल शेप आ रहा है pz का. कौन से pz का? फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल का. यहाँ पे भी दूसरे फ्लोरीन का 2pz और ये इधर से तीसरे फ्लोरीन का 2pz. तो ये कैसे दिख रहा है अपने को? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. Now the next example is ethene. That means formation of ethene molecule. That is called as the ethylene. Also called as the ethylene. अब इथिलीन कैसे तैयार होगा? कार्बन है, 2 कार्बन रहेंगे. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2. दैट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक 2s का 2p में एक्साइट होके we get this 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. Now these 2s1 2px1 2py1 and 2pz1 are intermixed together and we get a 4 sp3, sorry, here not 4, 1 2s and
two 2p are intermixed together and we get three sp2 hybrid orbitals and one प्योर p ऑर्बिटल मिलेगा। ये pz एज इट इज रहता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है। तो वो pz ये हो गया एक कार्बन का, ऐसे रहेगा दूसरे कार्बन का। तो ये जो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार हुए वो लीनियरली ओवरलैप होंगे, एक्सियली ओवरलैप होंगे एक कार्बन कार्बन के साथ। ये देखो ये कार्बन का और ये दूसरे कार्बन का sp2 और दो हाइड्रोजन के साथ, ये यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये कार्बन का लीनियरली ओवरलैप हो रहा है ये हाइड्रोजन के साथ एक्चुअली। अब बचा कौन है, ये 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो वो रहेगा परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये कार्बन का ये और ये दूसरे कार्बन का। तो वो एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैप होंगे, वो होंगे लैटरली और साइड वाइज। और अपने को पता है व्हेनेवर द साइड वाइज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इट फॉर्म ए पाई बॉन्ड, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है कि spa to sp2 ओवरलैपिंग होता है लीनियरली, देन इट इज सिग्मा बॉन्ड। sp2s ओवरलैपिंग हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, अगेन 2 सिग्मा बॉन्ड्स, हियर आल्सो sp2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। बट ये जो ऊपर के है pz अनहाइब्रिडाइज वो ओवरलैप हो रहे laterally sideways, it form one pi bond. So what will be the structure of ethene molecule? CH2 double bond CH2, one is pi bond, another one is sigma bond, right? ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज सिग्मा, सॉरी दिस इज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है परपेंडिकुलर जो साइडवाइज ओवरलैप हुआ था, और बाकी के ये सब सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, so each carbon uses sp2 hybridized orbital to form 2 sigma bond with hydrogen of 1 sigma bond with the other carbon. Pure p orbital of carbon forms pi bond. Summary is sp2 hybridization occur when a carbon has 3 attached groups. sp2 hybridized orbital contain, अब इसको कैसे निकालोगे, ये तो आपको आया ही होगा कि यहाँ पे sp2 में कितनी होगी टोटल, तीन हो गई ना टोटल। सो 3 डिवाइड बाई 1 करो इंटू 100 करो, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, तो कितना होता है 33%, तो 67% पी कैरेक्टर। कैलकुलेट करके देखो, द 3 sp2 hybrids points towards the corner of a triangle at 120 degree to each other. Each sp2 hybrid orbital is involved in a sigma bond formation and the remaining p orbital forms the pi bond. ये देखा हम लोगों ने, a double bond as a sigma plus pi bond. इथिन के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ना। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट मॉलिक्यूल इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप सभी को पता होगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड ये CH, मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अगेन कार्बन ये दो, so electronic configuration is ground state 1s2 2s2 2p2, excited state में ये 2s का यहाँ पे empty p orbital में चला जाता है। so we get excited state electronic configuration 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो एक कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के साथ, तो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार होंगे, 2 ही होंगे। तो 1s and 1p, यहाँ पे देखो 1s and 1p are undergo hybridization, we get 2sp hybridized orbital and 2 pure px py and pz orbital ऐसे मिलेंगे। और p जो प्योर रहेंगे p ऑर्बिटल से वो कैसे ओवरलैप होते हैं, परपेंडिकुलर, और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप होंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो ओवरलैपिंग है लीनियर sp ऑफ बोथ कार्बन एटम, इधर जो है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद द हाइड्रोजन एटम 1s ऑर्बिटल, हियर sp ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गए दोनों sp यूटिलाइज। अब बचे कौन है, ये वाले p, ये p और ये p, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस।
ठीक है। तो ये कैसे ओवरलैप होते हैं, साइड वाइज। देखो यहाँ पे दिख रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इट फॉर्म्स 2 पाई बॉन्ड्स, क्योंकि 2 p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से, तो वो कितने पाई बॉन्ड तैयार करेंगे, 2 पाई बॉन्ड तैयार करेंगे। तो देख सकते हो अपने यहाँ डायग्राम में, ये कार्बन, ये हो गया sp ओवरलैपिंग, ये भी हो गया sp ओवरलैपिंग, ये sp ओवरलैपिंग दो कार्बन का sp, और ये s, दिस इज आल्सो sp एंड s। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए कार्बन के, 2। अब बचे 2 पाई बॉन्ड, तो ये एक पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड, pz, px एंड py, ये दोनों ओवरलैप हो रहे एक दूसरे के साथ, एंड वी गेट 2 pi bonds. So the molecular formula is CH triple bond CH. Summary देखो, hybridization is C2H2, ये दिख रहा है ना, and the structure is CH triple bond CH. Now the summary is sp hybridization occur when a carbon has two attached groups. sp hybridized orbitals has 50% s and 50% p character. अब 50-50 आएगा ना, क्योंकि sp है, दोनों की एडिशन 2 ही हो रही है। The 2s hybrids are oriented at an angle of 180 degree to each other. Each sp hybrid orbitals is involved in a sigma bond formation, and the remaining 2 p orbitals form 2 pi bonds. A triple bond contains 1 sigma and 2 pi bonds. Okay, so I hope सब बच्चों को समझ में आया होगा. Now in this lecture what we have seen about the valence bond theory and VSEPR theory. Now in next lecture we will discuss about the molecular orbital theory. Okay, so bye students, and do the study well.